So psychology is the study of a human behavior, or for human behavior, how it is formed, that will be discussed when I will teach you exactly the behavior. But the foundation of a behavior is thinking. How you think depend upon that you behave. ठीक है. Now you should pay attention to your words, pay attention to your thinking. This thinking leads to your words. Then you must pay attention to your words, because these words leads to your action, and this action will leads to your habits, and these habits will leads to your behavior, and this behavior, if you pay attention to, that forms your character, and this character, if you pay attention to, that forms your fate. अब बेसिक क्या हो गया इसमें, फाउंडेशन क्या हो गया, तुम्हारी डेस्टिनी इज इन योर हैंड, योर डेस्टिनी इज इन योर hand. अब if you want to change, what you have to change? Thinking. If it is true that what we are now is because of past thought, it is certain that what you are going to think today, you will become in 5 years time. You cannot change your condition by remaining at the same level of thinking. अगर आज हमारी जो सोच है वैसी ही सोच रहेगी, तो आपको लगता है कि तुम्हारी कंडीशन चेंज हो जाएगी. अच्छा, अपने आप को ऑब्जर्व करो, ठीक है, ऑब्जर्व योरसेल्फ. अगर तुमने जो कुछ 1 साल पहले थी तुम्हारी कंडीशन, या 2 साल पहले थी, अभी 2 साल तो हो गए तुमको, यू हैव कंप्लीटेड 2 years. नाउ यू reflect on yourself, what you were having thoughts previously 2 years back. Are the same thoughts you are carrying, or the different thoughts you are carrying? Most of the time we are carrying the same thoughts, but hoping for change in our condition. It will never change condition if you have the same thoughts. How you will improve your thoughts? Why your thoughts are not improving? The reason behind it, because your company is same for 2 years, because what you are reading is the same for 2 years, what you are seeing, observing is the same for 2 years, what you are listening is the same for 2 years. If everything is same, then how your condition will be changed? So the basic funda of changing your condition is thinking. ये बात तो समझ में आ गई. तो हमें क्या चेंज करना चाहिए? पहला हमारा थिंकिंग. अब थिंकिंग कब चेंज हो सकता है? अब तक वट एवर वी आर सीइंग, इफ वी चेंज दैट व्हाट वी आर सीइंग, इफ वी चेंज दैट व्हाट वी आर लिसनिंग, इफ वी चेंज दैट आवर कंपनी, इफ वी चेंज व्हाट वी आर रीडिंग, इफ वी चेंज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, if we do so, then it is very easy to change our condition in the future. You are the master of your own destiny. हम अल्लाह को या ईश्वर को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये मेरी कंडीशन क्यों ऐसी है. Why have you ever think about the people? Why some people are rich? Why some people are poor? Why some people are good? Why some people are bad? Why some people are very active? Why some people are very lazy? Why some people are very cooperative and why others are not? The reason behind it is, see, when we have been created by nature, सबको जो पैदा किया वो कंडीशन तो वैसी थी ना. किसी को अमीर बनाया जब पैदा हुआ तब, किसी को गरीब बनाया जब पैदा हुआ तब. नहीं, all were the same condition without having anything, no कपड़ा, nothing. कुछ नहीं था, हम नंगे थे सब जब पैदा हो गए थे. So why the people, see, it is depend upon you. Being born in a poor family was not your choice, but to die in a poor family is your choice. समझे ना? अब ऐसा क्यों होता है? ये हमारी सोच की वजह से होता है सब कुछ. If your thoughts are very small, you will get small things. For example, I am giving an example. कोई लोग, कोई बंदे जो समझो वड़ा पाव चालू करते हैं गादी, या इधर टपड़ी चालू किया है किसी ने, ठीक है. He has started tea stall and vada pav stall here. Okay. Now I am seeing him, that fellow, for last 10 years he is there only.
his condition is not improving because he is not thinking to improve. क्योंकि वो उस एरिया सर्कल के बाहर सोचता नहीं है. यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ. हम क्या करते हैं, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते. आर यू एंजॉइंग व्हाट आई एम सेइंग? शुड वी कंटिन्यू ना? और ये तो हर हफ्ते को तुमको एक मोटिवेशन रहेगा कि हमें क्या करना चाहिए, ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए और ज़िंदगी में क्या करना चाहिए. व्हाट आई वांट, यू नो, माय बेसिक आइडिया. मैं तो सिलेबस ही सिखाने वाला हूँ ये, जिसमें इसमें जो है वो, मगर वो मेरी स्टाइल में रहेगा, एक बुक स्टाइल नहीं रहेगा. बुक स्टाइल का हेडिंग रहेगा, टॉपिक बुक का रहेगा, आइडिया मेरी रहेगी. ठीक है? क्योंकि तुमको समझना इंपॉर्टेंट है, करना क्या चाहिए, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है. बट सो माई फिलोसफी, मैंने मेरी एक फ़िलोसफी बनाया. तुम्हारी क्या फ़िलोसफी अभी तुम सोच लो. माई फिलोसफी इज़ 2-3 पॉइंट्स आई हैव टेकन. माई फिलोसफी इज़ लिफ्ट योर सेल्फ टू लिफ्ट अदर्स. जब तक तुम अपने आप को ऊपर नहीं लेते, लोगों को ऊपर नहीं ले सकते. इस फिलोसफी पे मैं काम कर रहा हूँ. ठीक है? एक फ़िलोसफी हो गया. दूसरा फ़िलोसफी जो मैंने पहला सेंटेंस बोला वो था, वो फ़िलोसफी ये है कि अगर आज तुम्हारे जो थॉट्स हैं और आज तुम्हारी जो कंडीशन है, ये तुम्हारी कंडीशन बिकॉज ऑफ प्रीवियस थॉट्स हैं, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि जो तुम्हारी कंडीशन तुम चाहते हो आफ्टर 2 और 5 ईयर्स, वो तुम कर सकते हो. मगर कब? जब तुम्हारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे आज. ये सेकंड फिलॉसफी हो गई मेरी. ठीक है? थर्ड फिलॉसफी जिसके ऊपर मैं काम करता हूँ मेरे लिए, वो ये है कि आई डू माई एक्शन, आई डू माई एवरीथिंग व्हाट आई नीड टू डू. जो कुछ करना है मैं करता हूँ. देन आई सरेंडर माई सेल्फ टू गॉड, दैट द कॉन्सिक्वेंस इज अप टू हिम, इट्स नॉट अप टू मी. व्हेन आई थिंक लाइक दिस कि द आई डू माई एक्शन बट द कॉन्सिक्वेंसेज इज अप टू गॉड, लिव इट, तो मेरे को डिप्रेशन नहीं आएगा ना बिल्कुल. क्योंकि आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम नॉट बॉदरिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज. आई एम डूइंग, आई एम स्ट्रगलिंग हार्ड consistently. That is my duty to do it. But if you focus on the consequences, you cannot get anything. But you must have a focus on your goal also. You will achieve that goal or not, that is a different story. Even if you don't achieve a goal, what you become in achieving goal, that is more important than achieving goal. Are you getting? हमने एक गोल सेट किया और उस गोल तक हम नहीं पहुंच पाए. ठीक है ना? मगर वो गोल सेट करने के बाद में जो कुछ हमने स्ट्रगल किया, उसमें जो कुछ हम बन गए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अचीविंग गोल. वो जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंसी, प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल, प्रोसेस ऑफ परसिवरेंस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अब ये कब आएगा हमारे अंदर? जब हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे. आज तक तो हमने देखा ना कि हमारे थॉट्स ही नहीं है. हाउ वी थिंक, we see, if you think about yourself, how you think, you are thinking or your thoughts are nothing but the 5 people surrounding you. जो तुम्हारे सराउंडिंग में 5 लोग हैं ना, उसी से तुम्हारे थॉट्स बनते हैं. आज तुम कुछ भी बोल दो तो, और अगर तुम उनका इंटरव्यू ले लो जो तुम्हारे साथ 5 है, तो वो भी वैसे ही बोलेंगे जैसे तुम बोलते हो. तो फिर तुम क्या बोल रहे हो? एक्चुअली तुम्हारे थॉट्स है ही नहीं. What you are speaking is not your thoughts. So what you are speaking is a thoughts given by, fed by the others to you. Now you have to develop your thoughts. And how you can develop your thoughts? By reading the books which you were not reading, by listening the things which you were not listening, by seeing those things which you were not seeing, by accompanying those people which you were not accompanying. जब हम ये सब चेंज करेंगे ना, तब हमारे थॉट्स चेंज हो जाएंगे. एंड देन विल स्टार्ट थिंकिंग बाय आवर सेल्फ. हम अपनी सोच कुछ तो बनाएंगे इस दुनिया में, इस धरती पे. नहीं तो फिर हम क्या सोचते हैं, जो लोगों ने सोचा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम सोचना शुरू कर देते हैं, और कुछ नहीं करते. हम क्या सोचते हैं? नई सोच क्या बनती है? अगर नई सोच नहीं होती न्यूटन की, जब उसने एप्पल नीचे गिरते हुए देखा, तो आज ग्रेविटेशनल फोर्स का हमको मालूम नहीं होता, अल्बर्ट आइंस्टाइन का रिलेटिविटी मालूम नहीं होता. हम आज भी ये सोचते कि ये ज़मीन फ्लैट है. अगर किसी ने डिस्कवरी नहीं किया होता, नई सोच नहीं बनाया होता कि नई गोल भी हो सकती है,
समझ में आया ना? तो अगर कोई नहीं सोचता तो आज मोबाइल भी नहीं होता था हमारे पास, ना फेसबुक होता, ना गूगल होता, ना कुछ भी होता। अगर सब लोग कंफर्ट जोन में रहते तो हमारे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं होती। तो ये सब कुछ चेंज करने के लिए हमें क्या चेंज करना चाहिए? सिर्फ एक चीज़, द सीक्रेट ऑफ चेंजिंग लाइफ इज़ वन थिंग। व्हाट इज़ दैट? चेंज योर थॉट्स, चेंज द वे यू आर थिंकिंग। समझ में आ गया ना? थॉट्स आर द सीडलिंग ऑफ रियलिटी। थॉट्स आर द, एक थॉट्स एक बीज है, बीज जो तुम आज लगाते हो ना, उसका पेड़ कहीं तो जाके बड़ा होता है और फल देना शुरू होता है। इफ़ द थॉट इज़ गुड इट विल गिव गुड फ्रूट्स, इफ़ द थॉट इज़ बैड इट विल गिव बैड फ्रूट्स। मगर फ्रूट तो आने वाला है। इफ़ यू लिफ्ट वन साइड ऑफ अ स्टिक, द अनदर साइड ऑफ द स्टिक विल डेफिनेटली विल बी लिफ्टेड। अगर एक स्टिक है उसको हमने उठाया, अगर मैंने चाहा कि स्टिक है इसको मैंने उठाया, तो एक साइड उठाया ना मैं, तो दूसरी साइड तो उठती है। मीन्स वट एवर यू डू एक्शन देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस एंड द कॉन्सिक्वेंस इज नॉट इन योर हैंड। बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंस, वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज विल बी, बट हैव अ गुड चॉइस and hope for the good consequences. Don't have a bad choice and having a good hope for the consequences, hope for the good consequences. ऐसा तो होगा नहीं, ये तो opposite है। Got it? So thinking plays, अब ये thinking क्या है मैं बताता हूँ। और thinking, every thought is a energy, every thought is a energy, every thought is a impulse, but it is energy. Energy cannot be destroyed. So whatever you think, whether you utter a word or not, but if you are thinking, this energy goes in the atmosphere. And when this energy goes in the atmosphere, it reaches to whom, about whom you are thinking, about what you are thinking, and it come back again to you. When the frequency matches. अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ तुमको कैसे, कि अभी हम फ़ोन लेते हैं और फ़ोन करते हैं, किसी को करते हैं, ठीक है। अब वो जब फ़ोन करते हैं वो जाता है स्टेशन पे, यानी टावर से जाके मिलता है, और फिर वो बंदे का फ्रीक्वेंसी मैच होता है उसके मोबाइल का, और फिर वो फ्रीक्वेंसी मैच होने के बाद तुम उससे बात करने लगते हो। तो होता क्या है एक्चुअली, जो तुमने एक्शन किया है उसका रिपरकशन तुमको आ गया, मगर कब आ गया? जब वो सेम फ्रीक्वेंसी में होगा, वो रेंज में नहीं है, तो तुमको रिपरकस हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है। सो वेन एवर वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समवन, समटाइम्स ऐसे होता है ना कि अरे मैं तेरे ही बारे में सोच रहा था और तू बंदी इधर हाजिर, ऐसा होता है कि नहीं? बहुत मर्तबा हम ये सोचते हैं कि मैं इसके साथ आई एम डूइंग वट एवर बेस्ट टू डू फॉर हिम, बट ही इज़ नॉट इम्प्रूविंग, यानी वो मेरे से दोस्ती नहीं कर रहा है, मैं तो उसके लिए मेरी जान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके ऊपर, मैं कितनी जान दूँ, मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूँ। ये सब लोग सोचते कि नहीं, मैं इतना किसी के लिए कर रहा हूँ मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, यह हमारी सोच बनती है। अब ऐसा क्यों होता है? वाई इट हैपन्स? बिकॉज द फीलिंग दैट यू हैव अबाउट दैट पर्सन इज़ नॉट ट्रू, यू आर जस्ट स्पीकिंग, बट द फीलिंग इनसाइड इज़ नॉट गुड। समझ में आ रहा है तुमको? देखो एक रॉकेट है, रॉकेट में जब भी पावर मिलता है जब उसमें फ्यूल होता है, फ्यूल होगा रॉकेट में तो रॉकेट ऊपर चला जाएगा। वैसे ही हमारे थॉट्स में फ्यूल है फीलिंग। मैं कुछ भी आपको बोल दूं, अगर उसमें फीलिंग नहीं है ना तो थॉट हैज़ नो इम्पोर्टेंस, दैट विल नॉट रीच यू, दैट विल नॉट रीच टू एनीवन। whatever I am speaking, if I am not speaking from my heart, it will not reach your heart. अब अगर हम ये सोचते हैं कि हम इसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं मगर उसकी कंडीशन अच्छी नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं तो तुम्हारा फीलिंग रॉन्ग है। तुम्हारा फीलिंग, वाई द प्रेयर आर नॉट लिसन बाय गॉड? क्यों ऐसा होता है कि हमारे प्रेयर कबूल नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती? वो इसलिए कि द फीलिंग बाय विच यू आस्क it doesn't match the frequency with your thinking. तुम्हारे थॉट्स कुछ और हैं
तुम बोल कुछ और रहे हो, फीलिंग कुछ अंदर और है। अगर ऐसा है, देयर इज नो हार्मनी बिटवीन थिंकिंग, फ्रीक्वेंसी एंड आस्किंग वर्ड्स। अगर इसमें नहीं है कुछ भी, हार्मनी नहीं है, तो वो इम्पैक्ट नहीं करती। आर यू गेटिंग? अभी तक जो कुछ मैंने बोला उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? एनी डाउट? जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये तुमको किसी ने बताया था आज तक? तो अभी सुनो, मैं जो कुछ बता रहा हूँ बहुत ही, एवरी सेंटेंस व्हाट आई स्पीक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट as far as your future is concerned, as far as my future is also concerned. जब मैं तुमको बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए भी सोच रहा हूँ what you are speaking, whether you are matching with your action, whether you are matching with your thinking. If it is, then it will surely impact your heart. If not, I am not doing so. अगर मेरा वीडियो is not matching with my audio, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर तुम्हारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा। और मैं बोलूँगा मैं इतने साल से बच्चों को बोल रहा हूँ, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। आई कंसीडर कि इतने लोग अगर सुन रहे हैं तो उसमें सबके सब सुधर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो होता नहीं है। इतने बच्चों में अगर 2-4 लोग भी सुधर गए ना, सोचने लगे ना इसके बारे में, अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में, तो उनकी लाइफ बदल जाएगी। उनकी लाइफ बदल जाएगी तो उनसे आने वाली फैमिली जो कुछ है वो सब बदल जाएंगे, उनकी कंडीशन बदल जाएगी। समझ में आ गया?